हेलो 9th स्टैंडर्ड। चलो लेट अस कंटिन्यू विथ योर एल्जेब्रा। वही चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर नंबर 2। ओके, रियल नंबर। अभी तक हमने 2.1, 2 एंड 3 तीन एक्सरसाइज ऑलरेडी कर ली है। थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वेर वी हैव स्टडीड लॉट ऑफ थिंग अबाउट द सर्ट्स लाइक मिक्स सर्ट, सिंपल सर्ट, then how to multiply such surds, how to simplify them. We have gone through that all in the previous exercise, right, in the previous video. And I will suggest you to read and watch that video again and again so that you don't forget about the surds, because this is a very new concept to you. So those who are especially weak in maths or who takes time or who are like unable to get how to solve the sum, in case you get any kind of question and you get stuck, you need to watch the videos again and again to always have that things in mind, to keep it in mind how to solve the equations, how to solve any kind of questions. ठीक है, so we are now moving to the next one is 2.4 exercise, that is about rationalizing the denominator. उसका थोड़ा बाद हमने लास्ट वीडियो में देखा था हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. इफ़ यू रिमेंबर वी हैव डन हियर इन दिस लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर हियर, वेर आई टोल्ड यू टू मल्टीप्लाई विद द डिनोमिनेटर. जो भी डिनोमिनेटर में उसकी जो सर्ट्स है ना, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने कहा था. ओके, आपको शायद याद होगा, अगर नहीं याद है तो प्लीज़ गो बैक एंड चेक इट आउट. हियर यू हैव सेम थिंग अगेन, बट इसके पहले हम 2.4 कर रहे हैं एक्सरसाइज. द फर्स्ट वन इज मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई इज द क्वेश्चन नंबर 1. The first is root 3 in the bracket, root 7 minus root 3. It's very simple. Okay, root 3 in a bracket, root 7 minus root 3, close the bracket. How to multiply? It's like a binomial and monomial. So how do you multiply monomial with binomial? Same way you have to multiply here in surds. That is root 3 into root 7 minus root 3 into root 3. Right? Root 7 into root 7, root 3 into root 7 minus, because there is a minus out here, so minus sign, root 3 into root 3. If you want you can skip this step and do directly, that is also okay. अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, skip करना है तो भी skip कर सकते हो, your choice. This is for those who are not understanding directly, so I am doing it. So root 3 into root 7 you get root 21. You remember students, whenever you have order same, okay, same order, see here the order is 2. Even the radicand values are different, but see the order is same, so you can multiply. You can multiply the radicand if the order is same. Minus. Now here root 3 into root 3 gives you what? In the previous video also I told you root 3 into root 3 gives you 3. Same like root 2 into root 2, 2. Root 3 into root 3, 3. Root 4 into root 4, 4. Okay, like that. So now can I subtract root 21 minus 3 and make it root 18? No, I can't do that, students. I can't do. Why? Because this is a surd and this is a natural numbers. They are different terms. I can't add the unlike terms. Understanding? So this much is the answer. Only 3 steps. So now you will love this exercise because it's so simple. Root 5 minus root 7 in a bracket root 2. ठीक है? यहाँ पे binomial है, यहाँ पे monomial है. Same, just like the previous one. What I'll do? Root 2 into root 5 minus root 2 into root 7. ठीक है? root 2 into root 5 minus root 2 into root 7. Same. Let's multiply. You have same order. So root 5 into root 2 gives you root 10 minus root 2 into root 7 will give you root 14. Okay. Now can I subtract root 10 minus root 14 as root 4? Can I do that? No. Again the answer is no. You can't do that. Subtraction के लिए you should have a what? Like surds. And like surd किसे कहते हैं? Which have the same radicand. Okay, like root 3 minus root 3 you can get 0, or 2 root 5 plus 3 root 5 you can get 5 root 5. समझ में आ रहा है आपको? अगर रेडिकेंट सेम होता है उसको लाइक सर्ट कहते हैं. वो भी आप वीडियो वापस देखो, व्हाट आर द लाइक सर्ट्स, हमने वो भी कवर अप करवा लिया इन द एक्सरसाइज नंबर 2.3. व्हाट आर द लाइक सर्ट्स आर एंड अनलाइक सर्ट्स आर. सो दिस आर अनलाइक सर्ट बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट रेडिकेंट वैल्यू. रेडिकेंट अगर डिफरेंट है तो दे आर अनलाइक सर्ट्स. सो यू कांट ऐड और यू कांट सब्ट्रैक्ट सच सर्ट्स. दिस इज द ओनली आंसर. Now third one is quite important, and that sum you will be doing 3 times. 3 root 2 minus root 3 in one bracket and 4 root 3 minus root 2 in another bracket. This is very important sum because you have binomial into binomial. अभी के जो previous 2 sums किए there you had monomial with binomial. Now here is binomial with binomial. So how to do? So let us take 3 root 2 in the bracket, 4 root 3 minus root 2 and minus root 3 in the bracket, 4 root 3 minus root 2. ओके, मैंने क्या कर दिया? हमने एक्सपांड कर लिया है. हमने क्या किया? 3 root 2 into this bracket minus root 3
इंटू अगेन दिस ब्रैकेट, ठीक है। अभी हमें हमारा बन गया है, सिंपल फॉर्म हो गया है बाइनोमियल एंड मोनोमियल। मल्टीप्लाई करते हैं हम 3√2 इंटू 4√3। सी याद रखो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 एंड 4√3 से, तो 3 एंड 4 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर सर्ट के बाहर है ना उसको मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज 3 4 ज़ा 12। नाउ इनसाइड द सर्ट क्या लिखेंगे हम 2 3 ज़ा 6। समझ में आया 12√6 कैसे मिला? आई अगेन रिपीट 3 and 4 which gives you 12. Write outside the surd. What you will write inside the surd? What radicand? So 2 and 3. 2 and 3 which is inside the surd, which is 2 3s are 6. Minus. This is 3. Okay. This is √2. This is √2. The √2 into √2 2. And 2 3s are 6. It's only 6. Understood how? 3√2 into √2. The √2 2. Keep it in your mind. And this is 3 is there out. 3 2s are 6. Now minus coming to this part, √3 into 4√3. So again √3 into √3 3, and this is 4. 3 4s are 12. Okay, root automatically निकल जाएगा. This is minus, this is also minus. तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस पुट कर दो. √3 into √2. √3 into √2 gives you √6. Okay, ये सब कैसे मिला समझ में आना चाहिए. This is why it is important sum. Now 12√6 and √6 are they like surds? Yes, they have same radicand √6. So you can add them. So 12√6 plus √6. √6 means 1√6. Assume it is 1√6. So 12√6 plus 1√6 gives you 13√6. And 6 and 12 are like natural numbers, like numbers hai. So we can add them also. -6 minus 12 gives you -18, sign of the greater number. So your final answer is 13√6 minus 18. Okay, can you add them or can you subtract them? No, because one is natural number, one is surd. You can't add or subtract such things. ये सम को आपको वापस देखना है. अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ही पॉज करके जस्ट 2 मिनट्स पहले जाओ, ये सम को वापस करो. एंड एट प्रेजेंट एज यू आर वॉचिंग द वीडियो, सॉल्व द सम ऑन योर ओन 2 times. बिना देखे 2 बार सॉल्व कर लो. आई एम श्योर यू विल गेट द सम. Whoever will complain you have not got the sum, that means you have not tried your best. You have not practiced while watching the video. That's why you have not got. Many of time you complain that I didn't get the sum which I already taught. So in that case what you have to do is you to stop the video for a minute and solve the sum on your own 2 times 3 times until you get the right answer and then proceed further. आपके पास मोबाइल एंड डेटा आपके पास अवेलेबल है, तो आपको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो. मैं वापस पूरा एक बार सम एक्सप्लेन कर देती हूँ. 3√2 minus √3 into 4√3 minus √2 is a question binomial to binomial. So हम पहले तो स्प्लिट कर देते हैं. 3√2 into 4√3 minus √2 in one bracket, minus √3 into 4√3 minus √2 in another bracket. ठीक है. Now I have to multiply 3√2 को 4√3 से. तो कैसे करेंगे? जो नंबर बाहर है, सर्ड के बाहर है, उसको मल्टीप्लाई कर दो. 3 4s are 12. Keep it here. And √2 into √3, I know it's √6. You can multiply the unlike. You can multiply this unlike surds. Minus 3√2 into √2, the √2 into √2 2, and there is a 3 out. 2 3s are 6. Same here, minus put कर दो. √3 into 4√3, √3 into √3 3, 3 4s are 12. यहाँ पे माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो √3 into √2 is √6. Then √6 and 12√6 are the like surds, and you have to add them. So 13√6 and -6 and -12 are again like numbers. So you have to add them. You get -18, sign of the greater number. Okay? Do this sum properly, nicely, and practice it. Now next question is rationalize the denominator. All these sums are important of rationalizing the denominator. Understand how to do it. First one, 1 upon √7 plus √2. Whenever the question is rationalize the denominator, what you have to do? You have to multiply by √7 minus √2 upon √7 minus √2. Yes, जो भी डिनोमिनेटर में ना उसका अपोजिट साइन लेना होता है. Whatever is in the denominator, if it is plus, you have to take minus, or if it is minus, you have to take plus. Understood? This is called rationalizing the denominator. This is a step. ये एक step है, आपको याद रखना ही पड़ेगा. Rationalize करना मतलब क्या? तो जो भी डिनोमिनेटर में है, अगर ये बाइनोमियल है तो आपको डिफरेंट साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है. अगर ये मोनोमियल होता तो वी वुड हैव टेकन सेम साइन, वी वुड हैव टेकन सेम नंबर, लाइक इन द प्रीवियस एक्सरसाइज वेयर यू हैड अ बाइनोमियल, वेयर यू हैड अ मोनोमियल. रिमेंबर, वापस एक बार मैं रिकलेक्ट करवा लेती हूँ आपको. 3√5, तो वी वर मल्टीप्लाइंग विथ √5 अपॉन √5 बिकॉज दे ऑल वर मोनोमियल. सी, ऑल वर मोनोमियल, बट हियर यू हैव ऑल दिस बाइनोमियल. यहाँ पे हमें क्या करेंगे? हम यहाँ पे उसके अपोजिट, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो हम माइनस लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो वी वुड हैव टेकन प्लस. अंडरस्टैंड? क्लियर? वेरी गुड.
ठीक है, और पूरे फ्रैक्शन को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू रूट 7 माइनस रूट 2 विल गिव यू रूट 7 माइनस रूट 2 ओनली. Okay, 1 into root 7 is root 7 minus 1 into root 2 is root 2. Now here is like a formula. It's like a plus b, a minus b. That's why we are taking minus sign. So that we can apply a formula a square minus b square. And what is a square minus b square formula says? A का square minus b का square. जिसको याद नहीं रहा उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a plus b into a minus b is a square minus b square. This is for those who don't remember the formulas. It's like a plus b, a minus b is a square minus b square. So root 7 का square minus root 2 का square. So therefore root 7 minus root 2 numerator में as it is. Now root 7 का square will be root 7 into root 7 7 minus root 2 का square यानी कि root 2 into root 2 2. Okay, root का square will be same number. So we get root 7 minus root 2 upon 7 minus 2 is 5. This is the answer. Root 7 minus root 2 upon 5. Understood? Next one, second, 3 upon 2 root 5 minus 3 root 2. ठीक है, यहाँ पे माइनस है. See here is minus. So we will rationalize it with 2 root 5 plus 3 root 2. याद रखना अगर यहाँ पे माइनस है तो we will have to rationalize with plus opposite sign. Same down denominator में भी 2 root 5 plus 3 root 2. यहाँ पे reason क्या लिखोगे? Rationalizing the denominator. You must mention the reason here. So now let's multiply 3 in the bracket 2 root 5 plus 3 into 3 यहाँ पे bracket off मत करना 3 into ये पूरा bracket करेंगे ना 3 root 2 upon don't close the bracket here. So 2 root हाँ see here again formula a minus b a plus b a minus b a plus b is what? A square minus b square. That is 2 root 5 का square minus 3 root 2 का square. Clear? सेम ही है फॉर्मेट, नथिंग चेंज, सिर्फ नंबरिंग डिफरेंट होगी, दैट्स ऑल. 3 इंटू 2 रूट 5 कितना होगा? तो यू विल मल्टीप्लाई 3 को 2 से 6 एंड रूट 5 एज इट इज प्लस 3 इंटू 3 9 रूट 2 अपॉन ना 2 रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 2 रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे स्क्वायर निकालते हैं याद रखो. पहले रूट 5 का स्क्वायर निकाल दो. रूट 5 का स्क्वायर 5, कीप इट इन योर माइंड. देन 2 का स्क्वायर रिमूव करो, 2 का स्क्वायर 4. नाउ 4 5 जा 20. ऐसे के निकालो. ठीक है, पहले रूट नंबर का स्क्वायर कीप इट इन योर माइंड, देन नंबर का स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई. ओके, 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 5 जा 20. चलो यू ट्राई दिस वन. रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18. ठीक है, सो देयरफॉर व्हाट विल गेट 6 root 5 plus 9 root 2 upon 20 minus 18 is 2. That's it. That's it. 20 minus 18 is 2. Do you have to add this? No. Why? Unlike surds, see the radicand values are different. Unlike surds, you can't add or subtract anything. I think third sum I'll give you to do in homework. Third sum आप खुद कोशिश करोगे थर्ड सम करने की. अगर थर्ड सम नहीं आया तो आपको पहले वापस 1 and 2 की प्रैक्टिस करनी, देन यू मूव टू द थर्ड सम. ठीक है ना. फोर्थ सम पे मैं आती हूँ एंड मार्क दैट इम्पॉर्टेंट. रूट 5 माइनस रूट 3 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3. सी द डिनोमिनेटर वैल्यू इट इज प्लस, तो आपको इतना क्लियर हो जाना चाहिए. वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ माइनस. रूट 5 माइनस रूट 3 upon root 5 minus root 3. Rationalizing the denominator will be your reason. I have to take plus. If it is plus here in the denominator, I have to multiply with minus always. So now see, now look at the numerator how it is. Root 5 minus root 3 into root 5 minus root 3. Okay, so it's like binomial into binomial. मतलब ये binomial का square हो गया ना. Root 5 minus root 3 into root 5 minus root 3. It is like a root 5 minus root 3 the whole square. Yes, it's like a minus b the whole square. Now here root 5 plus root 3 into root 5 minus root 3 is like a plus b, a minus b. So that is a का square minus b का square. ये step तो common in every sum. चलो अभी इसको कैसे solve करेंगे? root 5 minus root 3 का whole square. Okay, it's like a minus b the whole square. What is the formula we have? A minus b the whole square का formula 8th standard में आपने सीखा है, 7th में सीखा है. a square minus 2ab plus b square. a square minus 2ab plus b square. Your a is root 5, your b is root 3. Let's put, it's like a square minus 2ab, तो a का square यानी कि root 5 का square. तो मैं step कर ही देती हूँ. root 5 का square minus 2 root 5 2ab 2 into a into b plus b का square upon root 5 का square
इज 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर इज 3. चलो रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 माइनस 2 रूट 5 इंटू रूट 3. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यू कैन मल्टीप्लाई रूट 5 एंड रूट 3. रूट 5 इंटू रूट 3 इज रूट 15. सो इट इज 2 रूट 15 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 5 माइनस 3 2. सो now 5 plus 3 you can add. 5 plus 3 कितना होता है 8. 8 minus 2 root 15 upon 2. 8 minus 2 root 15 upon 2. यहाँ पे शायद इन योर बैक यू आर गिवन वन एडिशनल स्टेप. वो एडिशनल स्टेप क्या है मैं बता देती हूँ आपको. इट इज़ 8 minus 2 root, it's 8 minus 2 root 15 upon 2. ठीक है. तो यहाँ पे कॉमन क्या है, सी इन दिस बोथ द बाइनोमियल 2 इज कॉमन फैक्टर. तो रिमूव द 2 कॉमन आउट. इफ आई रिमूव द 8 में से 2 कॉमन, व्हाट लेफ्ट इनसाइड 2 वॉट ज़ा 8, 2 4 ज़ा माइनस 2 रूट 15 में से 2 इज टेकन आउट, व्हाट लेफ्ट इज ओनली 15 अपॉन 2. नाउ यू कैन कैंसिल 2 and 2. मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आ गया तो आप कैंसिल कर सकते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को. यू कैन कैंसिल 4 and 2, यू कैन कैंसिल 8 and 2 लाइक दिस. यू कैन कैंसिल 2 and 2 बिकॉज राइट नाउ इट इज बाइनोमियल. ओके, यू कैन कैंसिल व्हेन द समथिंग इज कॉमन टेकन आउट एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, तभी आप कैंसिल कर सकते हो, याद रखना. सो व्हाट इज द आंसर यू हैव 4 माइनस रूट 15 इज योर फाइनल आंसर. दिस सम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गो थ्रू द एंटायर सम वंस अगेन and try solving it 3 times. Whichever sum I say important, that has to be done 3 times. Okay, chalo, we are now on the last exercise of your chapter number 2, that is 2.5. okay, 2.5 is find the values. okay, याद रखो absolute values of any real number is never negative. याद रखो ये line, absolute value of any real number is never negative. This is called absolute value. This is called absolute value. ये जो ऐसे 2 लाइंस बनी है ना, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू. तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. अगर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव होगी तो भी हमें पॉजिटिव ही लिखना है. समझाती हूँ. 2.5 एक्सरसाइज फर्स्ट वन. इट्स रूट अंडर द एब्सोल्यूट वैल्यू 15 माइनस 2. ठीक है, पहले तो हम बर्डमास रूल ही अप्लाई करेंगे. हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. 15 माइनस 2 इज 13 इन द एब्सोल्यूट वैल्यू. हाँ, जब आपको एक सिंगल नंबर बचे ना, जब कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर बचे तभी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देनी है. तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 13 इज 13. आंसर इज 13 लाइक दिस. ओके, यू हैव टू राइट फाइनल आंसर विदाउट द एब्सोल्यूट वैल्यू बट इट शुड बी पॉजिटिव ऑलवेज. सेकंड देखते हैं 4 माइनस 9. ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है तो 4 माइनस 9 का वैल्यू 4 माइनस 9 कितना होता है -5. ओके, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. बट जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे हमें सिर्फ क्या लिखना है 5 बिकॉज हमने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज पॉजिटिव 5. समझ में आ रहा है डिफरेंस? डू यू गेट द डिफरेंस? यू टू राइट आंसर ऑलवेज पॉजिटिव इवन दो द आंसर इज एक्चुअली कमिंग नेगेटिव बट एब्सोल्यूट वैल्यू इज नेवर नेगेटिव, दैट्स व्हाई यू टू राइट पॉजिटिव. सेम वे नेक्स्ट वन. एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर 7 इंटू -4. ये सिंगल नंबर है तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें से एब्सोल्यूट वैल्यू रिमूव कर देंगे. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7 इज 7 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 इज 4. ठीक है, नाउ 7 4 ज़ा 28 पॉजिटिव. अगर आप ऐसे देखने जाओगे 7 इंटू -4 तो आप -28 करके फिर पॉजिटिव 28 लिखोगे तो भी चलेगा. ठीक है, समझा? ओके, नाउ नेक्स्ट वन. सेकेंड का फर्स्ट वन. और यहाँ पे हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे. वी टू सॉल्व इट. तो ये बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ है तो आप ध्यान से देखो. इट इज़ 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1. ये इन द एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है. तो हमें क्या करेंगे, हम पहले ये एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव कर देते हैं. ठीक है, वी विल रिमूव द एब्सोल्यूट वैल्यू. सो वी गेट 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 और 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू -1. ठीक है, आपको दो ऑप्शंस लिखने हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है. जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव करोगे एंड वी ऑलरेडी हैव द एब्सोल्यूट वैल्यू का वैल्यू दैट इज 1. दिस 1 कैन बी अ पॉजिटिव 1, इट कैन बी नेगेटिव 1. राइट, जैसे हमने प्रीवियस समय ये -5 था फिर भी हमने पॉजिटिव 5 लिखा. ये -28 आ रहा था फिर भी हमने पॉजिटिव 28 लिखा. यानी 2 आंसर्स हो सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव. पर हम नेगेटिव तो लेते नहीं हैं, हम हमेशा पॉजिटिव ही लिखते हैं. बट जब हम सॉल्व करेंगे हमें दोनों वैल्यूज़ लेनी है, एक तो पॉजिटिव लेनी है और एक नेगेटिव लेनी है. और इससे हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू विल बी 3x इज इक्वल्स टू -5 को पहले शिफ्ट कर देते हैं तो 1 + 5 हो जाएगा. देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू 6 एंड देयरफॉर x का वैल्यू इज 6/3 दैट इज 2. सॉरी हियर. और सेम यहाँ पे भी करेंगे. 3x इज इक्वल्स टू -1 + 5. -1 यहाँ पे 5 वहाँ पे आ जाएगा तो +5
सो देयरफॉर 3x इज इक्वल्स टू -1 + 5 इज 4 साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, याद रखो ये रूल्स. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4/3. यानी x की दो वैल्यूज़ हो सकती है, या तो x का वैल्यू 2 हो सकता है या तो x का वैल्यू 4/3. तो यहाँ के जो जितने भी सारे सम्स है ना, ऑल दैट 4 सम्स, यू विल हैव 2 आंसर्स, इधर 1 और दिस. ओके, आई ट्राई द सेकेंड वन ऑल्सो. एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है 7 - 2x इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, क्या करेंगे? सो फर्स्ट स्टेप विल बी 7 - 2x, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिमूव कर देना है, इज इक्वल्स टू 5, और 7 - 2x इज इक्वल्स टू -5. या तो पॉजिटिव 5 या तो -5, दोनों वैल्यूज लेनी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वेन एवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. सो देयरफॉर 7 को शिफ्ट करना है, बिकॉज -2x जो हम x की वैल्यू फाइंड करें, इसके लिए -2x को यहाँ पे रखो. 5 - 7, 7 शिफ्ट हो जाएगा. सो देयरफॉर -2x इज इक्वल्स टू 5 - 7 इज -2, एंड माइनस एंड माइनस कैंसिल फ्रॉम बोथ द साइड. ये नॉर्मल इक्वेशन जो हम 8th स्टैंडर्ड में सीखी है, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन विथ वन वेरिएबल. सो x इज इक्वल्स टू 2/2, दैट इज x का वैल्यू इज 1, या तो वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x इज 1, और लेट्स सी अदर क्या मिलता है. -2x इज इक्वल्स टू -5 - 7. सो देयरफॉर -2x इज इक्वल्स टू -12, राइट. Minus and minus cancel from both the side. So therefore x is equals to 12/2. So therefore x का value is 6. And here the x value either 1 or 6. Third one, 8 - x/2 in the absolute value is equals to 5. Same करना है हमें. क्या करेंगे? 8 - x/2 is equals to 5, और 8 - x/2 इज इक्वल्स टू -5 + 5 और -5. तो हम पहले तो 2 को शिफ्ट करते हैं. तो 8 - x इज इक्वल्स टू 5 2 = 10. यहाँ पे भी सेम, 8 - x इज इक्वल्स टू -5 × 2 इज -10. अभी x का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो -x इज इक्वल्स टू 10 - 8. देयरफॉर -x इज इक्वल्स टू 2. 10 - 8 इज 2, बट वी डोंट वांट -x, वी वांट ओनली x. ये माइनस साइन 2 को चला जाएगा, तो यू गेट x का वैल्यू -2. हमेशा वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होता. अगर वेरिएबल नेगेटिव आता है तो उसको नंबर में दे दो, नेगेटिव साइन नंबर को दे दो. और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -x इज इक्वल्स टू -10 - 8. सो देयरफॉर -x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस विद द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर -18. यहाँ से माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 18. x इज 18. ओके, एंड द लास्ट मोस्ट सम important, that is in the absolute value 5 + x/4 is equals to 5. So therefore 5 + x/4 is equals to 5, और 5 + x/4 is equals to -5. ओके, या तो +5 या तो -5. ठीक है, अभी से क्या करेंगे? पहले तो मल्टीप्लाई विथ 4, एंटायर इक्वेशन विल बी मल्टीप्लाई टू 4. हम एंटायर इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 4 = 20 + x/4 × 4 will be x is equals to 5 4 again 20, और 5 4 = 20 plus x is equals to -5 × 4 is -20. So therefore x is equals to 20 -20, ये +20 यहाँ पे आ जाएगा तो -20 हो जाएगा, और x is equals to -20 -20, ये +20 यहाँ पे शिफ्ट किया तो -20 आया. ठीक है, दिख रहा है आपको? यस. सो therefore x is equals to 20 - 20 is 0, और x is equals to -20 gives you -40. यानी कि x का वैल्यू या तो 0 है या तो -40 है. Understood the entire sum? And here we are done with your exercise 2.5, and I have told you yesterday to try some problem set के sums, but I told you don't practice sum number 7th and 8th, right? Baki all I have told you to practice. So now today you will be practicing 8th question as well. 8th question जो आज मैंने सिखाया है ना, उसके ऊपर ही based है. So except 7th question, you should be done with all the questions except this 7th. ये 7th को छोड़ के बाकी सारे सम्स आपको प्रैक्टिस करने हैं प्रॉब्लम सेट के. 7th पार्ट आई विल शो यू इन द जूम क्लास. ओके, आई थिंक वी आर हैविंग इट ऑन मंडे. सो ओरल्स लेने के बाद आई विल बी शोइंग यू हाउ टू सॉल्व सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ प्रॉब्लम सेट. बाकी एवरीथिंग यू शुड डू. हाँ, डाउट्स होंगे तो वो मैं सॉल्व करूँगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मुझे दिखाना है हाउ यू हैव सॉल्व एंड व्हाट यू हैव सॉल्व. ओके, सो बाय बाय.
practice thoroughly, students. Don't just give the argument or don't just make an excuse that I have not understood. You have this video, you can watch it again and again. All right, bye bye.